جی میں آپ کا ٹائٹل لکھ رہا تھا, اس سے کیا کلیم کرنا چاہتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے فیمیل سرکمسیجن کے بارے میں؟ اچھا تو پہلے یہ بات بتائیے, میل کا سرکمسیجن ہے نا, وہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے آپ کے حساب سے؟ آپ تو پہلے مسلمان تھے نا. سوال مجھ سے نہیں کرنا ہے آپ کو, میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ فیمیل دیکھیے سرکمسیجن کے یار آپ لوگ الٹا کیوں چلتے ہو ہمیشہ؟ نہیں بیس کلیئر ہونا چاہیے. بہت سارے نان مسلم بھی دیکھ رہے ہیں, ان لوگ کے بعد غلط بھی ہاں ابھر ہاں جائیں گا نا. ٹھیک ہے, آپ بیس کلیئر کر دینا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سرکمسیجن کا پریکٹس ہے, خاص کر کے جو فیمیل سرکمسیجن آج ہمارا ٹاپک ہے, اس بارے جی میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی اسلام میں یہ پریکٹس نہیں ہے, یہ کچھ ٹریڈیشن سے چلا آ رہا تھا ایجپشین کے, ایسا ہسٹری میں آتا ہے. باقی اسلام کی پریکٹس نہیں ہے. اس کے اوپر میں نا قرآن کی آیت بھی پیش کروں گا. آپ جو بول اچھا رہے ہیں پہلے نا جینیٹال میوٹیلیشن, یہ بتائیے کہ آپ اس پریکٹس کو صحیح مانتے یا غلط مانتے؟ جی آپ نے جو یہ بولا ہے نا جینیٹال میوٹیلیشن, جس میں جو ہے نا پورا کلیٹرس کاٹ دیا جاتا ہے, وہ فیل نہیں کر پارٹ پاتی ہے, تو اور سب پورا قرآن کے خلاف ہے. کلیٹرس ہاں اس کو پورا جو پارٹ ہے نا کٹنگ کر دیا. ہاں وہ جو ہے نا حرام ہے اسلام میں. پارٹ اور فل کلیٹورس بالکل پورا اچھا, حرام ہے اسلام میں. انشاءاللہ میں اس کے اوپر بھی آیت پیش کروں گا, مگر اس سے پہلے یہ بات بتائیے. قرآن اور حدیث سے آپ نے کہا کہ یہ حرام ہے, اور جی رسول اللہ آپ کے یہ چیز کی پرمیشن دے رہے ہیں, بلکہ اس کو اچھا فطرہ بتا رہے ہیں, اچھا تو کیا کہیے گا پھر؟ کہیں گے رسول اللہ بھی حرام کام میں انوالو تھے؟ ایک منٹ, ہاں اس سے پہلے آپ جو ہے نا صحیح بخاری 6297 نکالیے. ارے آپ نے اسے میں کیا فطرت کہا پوچھ نا. رہا ہوں, پہلے آپ اس کے بارے میں بتائیے. بالکل نہیں, ایسا نبی نے کہا ہی نہیں. یہ فطرت ہوگی کہ عورت جو ہے نا, مطلب اس کو فیل ہی نہ ہو کچھ بھی, یہ فطرت ہوگی, قرآن کے خلاف ہے یہ. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کو کہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ اس میں انوالوڈ ہے یا نہیں ہے فیمیل سرکمسیجن میں, جی بالکل. تو آپ یہ کہیں گے کہ رسول اللہ جو ہے وہ حرام کام کا انوالو تھے وہ, اور اس کے بعد آپ اسلام چھوڑیں گے؟ جی دیکھیے, اس سے پہلے میں آپ کو چیلنج دے چکا اسلام چھوڑنے کا, اس میں آپ فل فیل ہو گئے. پہلے آپ وہ پروف کیجئے, پھر اسے پروف کیجئے. میرے ویسے میں اس میں پیارے بھی آپ کو دے بھائی, دیتا ہوں. ابھی آپ نے کہا کہ فیمیل کیا حضرت؟ سرکمسیجن ایف جی ایم, سنو میری بات, آپ ہاں نے ہاں ابھی تھوڑے دیر پہلے کہا ایف جی ایم فیمیل سرکمسیجن جی یہ ایک حرام کام ہے. آپ نے خود کہا, چاہے جی وہ پارٹ کو کاٹے, تھوڑا بہت پارٹ, یا فل کلیٹورس کو نکال دے, آپ نے کہا حرام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جی حرام کام اگر میں رسول اللہ کے آپ کے انوالومنٹ بتا دوں, تو کیا آپ اسلام چھوڑو گے؟ جی اس سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ حضرت ابوبکر نے کیا گالی دی تھی. میں نے آپ کو یہ بھی پچھلی بار دے کے گیا تھا, ارے آپ نہیں چچا, پیش کر پائے تھے. یہ آپ لوگ اتنا گھبراتے کیوں ہو یار؟ تو میں گھبرا تھوڑی, آپ کو سامنے چیلنج دیا میں نے. حضرت ابوبکر نے کیا چیلنج گالی نہیں, دی تھی آپ ابھی کو, جو ٹاپک پروف چل نہیں کر رہا پائے ہے تھے. اس میں جی آپ اس نے کو بھی میں کہا کر یہ لوں گا, اگر حرام آپ کو ہے, اول میں ثابت کر وہ دوں پیش تو کرنا پڑے آپ گا. اسلام چھوڑو گے؟ اول حضرت ابوبکر کا پیش کرنا پڑے گا. آپ نے میرے کو بیک سٹیج کر دیا تھا پچھلے ٹائم. میرے پیارے بھائی, میں پھر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ ساحل میری اسلام آواز آ چھوڑو رہی گے ہے آپ اگر کو؟ میں رسول اللہ کا بالکل. انوالومنٹ بتا دوں؟ جی پہلے بالکل. وہ پیش کیجیے گا, پھر اوکے اس کو. اوکے پہلے اوکے وہ پھر ڈن. یہ. بالکل, انہوں نے ساحل کہا ٹاپک آپ کو آج جو میری ہے آواز آ رہی فیمیل. ہے؟ محمد علی بھائی, پتہ نہیں یار, آپ کا تو کچھ تو بھی ایشو ہے, کچھ مائک کا ایشو ہے آپ کا. دیکھیں اب یہ میری آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی کچھ بولیے بالکل. آپ تھوڑے دیر. اچھا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکمٹانسز تو ہے, بالکل ہے. اور وہ انڈیا کا مسلمان جو ہے سک ہندو لڑکیوں کے ساتھ وہ سرکمٹانسز ہی کر رہا ہے. اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ایڈم کا کوئی عطا پتہ چلے, تو اس کی فیملی کے ساتھ بھی ہم نے اس کی فیملی کا بھی سرکمٹانسز پاکستان میں کرنا ہے. تو ہم تو ہر بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم محمد علی بھائی, سرکمٹانسز سے کیا مراد ہے آپ کی؟ اس کو ختنہ کہتے ہیں. اچھا, سرکمٹانسز اچھا, ختنے کو آپ سرکمٹانسز کہتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. ہاں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت انڈیا کا جو مسلمان ہے وہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ وہ یہی کر رہا ہے, اور جب وہ اوکے. ناکام ہو جاتا ہے اس کو کاٹ پیٹ کے باکس میں بھر دیتا ہے. کہ انڈیا کا مسلمان جو ہے وہ ہندو سناتن لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ کر رہا نہیں, ہے. سننا یہ ہے کہ بالکل نہیں؟ سچ ہے. ایک منٹ محمد علی بھائی, ٹاپک یہ نہیں ہے کہ ہندوستان کا مسلمان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سنت میں ہے کیا نہیں ہے؟ بالکل نہیں. ڈیفینیٹلی. اگر دیکھیں نا, میرے پاس تو اتنی نالج نہیں ہے, مگر انڈیا کے مسلمان کے پاس کوئی نہ کوئی نالج ہوگی, تبھی تو وہ لڑکیوں کے ساتھ وہ یہ کرتا پھر رہا ہے.
अच्छा ठीक है, आप मोहम्मद अली भाई ये टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा, और अगर सरकमसिजन, फीमेल सरकमसिजन अगर रसूलुल्लाह से साबित होगा तो हमारे प्यारे मोमिन भाई आज इस्लाम छोड़ेंगे। चलिए, ये अव्वल तो सबसे ये पेश पहले। करना पड़ेगा, अव्वल तो ये अरे पेश करना होगा कि अभी हजरत आपने अबू बकर डन ने कर गाली दिया है, दी। आपने हाँ, डन अव्वल मैंने डन बोला कर आप दिया है। रिवर्स जाइए वीडियो पे, अव्वल तो वो पेश करना पड़ेगा ओके, हजरत अबू बकर का। नहीं अरे मेरे भाई, अभी आप इस्लाम छोड़ेंगे, अभी आप भाग नहीं सकते, जी, क्योंकि जो आप खुद सोचो मेरे भाई। साहिल भाई का वीडियो नेट स्लो है रिकॉर्डेड भाई, है। मेरे आवाज में कुछ इशू है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैंने बोला हाँ, अव्वल हजरत अबू बकर का पेश करो, फिर ये करो, मैं नहीं तब अव्वल, छोड़ूंगा। अव्वल दुव्वल छोड़ दो। अबू तो बकर वो मेरा ज्यादा पिछला रह इंपॉर्टेंट है गया था। आपके लिए, या मोहम्मद साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखो इंपॉर्टेंट जो भी है, मगर इन्हें जो पहले चैलेंज दिया जो उसको भी पहले है क्लेम मतलब, किया जाएगा कि दूसरा, ये इससे नहीं इसके लेना देना ही आपके नहीं है इस लिए, टॉपिक से। आपके लिए अबू बकर साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मोहम्मद मोहम्मद साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए मैंने चैलेंज पहले किसका दिया उसी को मिलूंगा, नंबर मेरे वाइज चलेंगे ना, भाई, पहले अब 2 आता देखो है कि 1 असल आता में है। ये यू टर्न मारेगा मारेगा ऐसा लिखे है, क्योंकि इनको अभी डर हो गया है कि कहीं दिखा दिए तुम भाई तो और क्लेम क्यों साबित कर हो रहे हो? गया। मैं म्यूट कर रहा हूं आपको। आपको अभी ये डर है मोमिन भाई को कि कभी दिखा दिया और रसूलुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट दिख गया उसमें, तो मेरा इस्लाम अभी मेरे को छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले के भाग जाओ, इससे पहले के बात को पलट दो। सबने देखा यही हाल होता है मुसलमानों का। दीपक पासवान जी, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं आपको हदीस दिखा रहा हूं, ये आपके सामने एक हदीस है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5889। ठीक है, क्या लिखा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत किया कि 5 चीजें, फरमाया 5 चीजें, खतना कराना, मुंह जेर नाफ मूंडना, बगल के बाल नोचना। अच्छा, इसमें देखो कॉमेडी, बगल के बाल नोचना। ये क्या? मर्दों के लिए है। हाँ, अरे रुको रुको, रुको जरा। पढ़ लीजिए, आपकी इल्म बहुत कम है, वो जरा सही करता होगा। हाँ, मैं अभी आपके इल्म में इजाफा कर दूंगा। मैं लोगों से ये पूछ रहा हूं, और मुसलमानों से और तुमसे भी, कि ये तुम जो अपने बगल के बाल निकालते हो, वो नोच के निकालते हो? और सारे मोमिनों से मेरा सवाल है, आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं बगल के बाल को नोचना। ये देखो 5 चीजें, फरमाया कि 5 चीजें, खतना कराना, मुंह जेर नाफ मूंडना, यानी प्यूबिक हेयर जो है उसको शेव करना, बगल के बाल नोचना। सारे मोमिनों जल्दी से बोलिए। अभी से आप लोग जो है बगल के बाल शेव नहीं करोगे, और मोमिनाओं से भी बगल के, क्योंकि भाई बगल के बाल तो मेल फीमेल दोनों को होते हैं। प्यूबिक हेयर जी जो जी, है सुनिए मेल फीमेल सुनिए। सबको होते हैं, जब प्यूबर्टी हिट हो जाती है तो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेरा जी सीधा जी, सवाल है, अभी से, हो सकता है आपको मालूम ना हो, लेकिन अब मालूम पड़ गया है कि भाई बगल के बाल को शेव नहीं करना है, आपने नोचना है, प्लग करना है। हाँ, लेकिन खींच अगर खींच के शेव कर निकालना है। लिया किसी ने, सुनिए, शेव कर हाँ, लिया तो उसे नोचना नहीं है, क्योंकि उससे और दूसरी बीमारियां होंगी, ये भी उलमा कहते हैं। क्या 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 समझे? क्या? उलमा ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने ब्लेड से काट लिया है, उसको नॉलेज नहीं थी, और फिर जो है ना वो नोच रहा है उसे, तो उससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। वो क्या बोलते हैं, वो एरिया उधड़ भी सकता है, इसके लिए उसको अरे नोचिएगा आप मत नोच स्टार्टिंग, के जब है ना निकालते हो या? स्मूथ मोमिन भाई, स्मूथ रहते, फर्स्ट टाइम पे मोमिन भाई, स्मूथ रहता है बाल। मोमिन भाई, जी आप अपने बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करके निकालते हो? जी जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले ये बात बताइए, आपने कभी अपने आसपास वाले को नाक के बाल नोचते हुए देखा है कि नहीं? नहीं, नाक के बाल बाल नोचते हुए नहीं, नाक के नहीं बाल देखा है ना, नोचते तो हुए नहीं देखा। सुन लीजिए मेरे से, बहुत लोग नोचते हैं उनको कुछ नहीं होता, स्टार्टिंग में आप स्मूथ बाल आते ठीक हैं, है। ब्लेड चलाते हैं तो अरे हमें कड़क आते हैं। अच्छा, एक मिनट मेरे भाई लोग, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक सवाल एक किया जाता है, सवाल ए का आंसर मांगा जाता है, मोमिन सवाल ए का आंसर नहीं देता, वो जाता है बी सी डी ई एफ जी एच सब पे चला जाएगा, क्योंकि लेकिन ए आपका का बेस सवाल ही का नहीं जवाब नहीं क्लियर है, देगा। आपका मैं बेस ही आपसे नहीं ये क्लियर पूछ है। रहा हूं, मैं बगल के बाल की बात कर रहा हूं, ये मुझे नाक के बाल जी, उखाड़ने की बात कर रहा है। तो नाक के बाल नहीं उखाड़ते कितने लोग? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करते हो? जी, आप बताइए पहले, लोग नाक के बाल नोचते या नहीं?
हाँ कैसे हाँ मोमिन लोग हैं यार, ये रसूलुल्लाह ने कैसी मुसीबत में इनको डाला हुआ है। तुम अच्छा अच्छा, बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करते हो? लड़कियों के लिए शेव करना सुन्नत है, समझे, कोई चीज से, अच्छा उनके लिए नोचना सुन्नत नहीं है। नहीं, आप उसके क्या लिए करते अलग हो? से आप हदीस लड़की है, तो नहीं हो ना? उसके लिए अलग से हदीस है, समझे। नहीं, पहले ये बताओ कि आप लड़की तो नहीं है ना, आप नोच के निकालते हो या शेव करते हो? जी, उसका मैं जवाब बाद में दूंगा, अगर आप इतना ध्यान में रखिए कि जो है ना। मुझे जवाब नहीं देना है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं कराना है। अच्छा ठीक है, अब देखिए हदीस गाइस, में आगे बढ़िए, आपके ये टाइटल होता क्या है और है। क्या बात नहीं निकालते नहीं, पहले ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। आप लोग हैं। क्यों जी, शर्माते हो अपने रसूलुल्लाह की बात से? आप लोगों को क्यों शर्मिंदगी महसूस होती है? ऐसा क्या कर दिया रसूलुल्लाह ने आप लोगों के साथ कि आप लोग शर्मिंदा है? जी, आप जो अभी आगे बढ़िए, आपके व्यूवर्स की मैं बेइज्जती नहीं बढ़ूंगा, क्लियर है तो पहले उनका बोलो, करना बगल पड़ेगा। के बाल नोच के निकालते हो या शेव करके निकालते हो? अरे भाई, जिसको नॉलेज नहीं थी वो लोग शेव कर ले तो उलमा उसमें वो भी नहीं कहते कि ये फर्ज वाजिब नहीं है, ये फर्ज वाजिब है, अभी तुम्हारे ये को फर्ज वाजिब है, रसूलुल्लाह की हदीस ये फर्ज मालूम वाजिब है। है, ये मेरे फर्ज भाई, वाजिब है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। खतना फर्ज वाजिब है, फर्ज वाजिब है, ये बात बोलिए। रसूलुल्लाह का हुक्म है। उनका हुक्म सुन्नत भी रह चुका है, उनका हुक्म जो है नफिल भी रह चुका है, समझे, हुक्म वो है, इसके हुक्म। ऊपर है। हुक्म जो है हुक्म है ना बहुत सारे रसूलुल्लाह रहते का। हैं, हुक्म 5 तरीके के होते हैं, एक सुन्नत, एक वाजिब, एक फर्ज और एक जो है ना नफिल, ये सब रहते हैं। हुक्म अब आप हुक्म जो पहले हुक्म, मुसलमान थे मेरे को, ऑर्डर। अच्छा ऑर्डर है, रसूलुल्लाह तो ने उससे बड़ा ऑर्डर तो दिया है सुनिए कि सुनिए। बगल के बाल को, एक मिनट रुको, यहाँ जी पे जी दो चीजें देखो। जब प्यूबिक हेयर की बात आई, रसूलुल्लाह ने क्या किया? शेव करो, ठीक जी है, शेविंग द प्यूबिक जी, रीजन। और जब बगल की बात आई तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा? नोचो। बिल्कुल। हाँ, तो अभी मुझे बताओ कि आप बगल के बाल नोच के निकालते हो या शेव करके निकालते हो? उससे पहले बात बताइए कि फर्ज है क्या, सुन्नत है क्या, नफिल है, ये बात बताइए। कितना प्रॉब्लम में डाल दिया मेरे मुसलमानों को रसूलुल्लाह ने। ये भी सोचता होगा क्या मुसीबत है, अगर कल से मैं बगल के बाल जो है नोच के निकालूंगा तो मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, आप जो है ना मजाक बनाते कोई रहिए, बाकी एक ये बात बताइए मोमिन फर्ज लेके आ है, जाओ। नफिल है कि क्या है। कोई, एक मिनट रुको, अभी मुंह बंद करो। कोई एक मोमिन लेके आ जाओ जो यहाँ पे बोले कि मैं रसूलुल्लाह की इस बात को मान के अभी से बगल के बाल शेव नहीं करूंगा बल्कि नोच के निकालूंगा। मेरे रसूलुल्लाह मेरे सब कुछ, मेरे रसूलुल्लाह मेरे सब जी, कुछ, मेरे रसूलुल्लाह ने जैसा बोल कहा लिया, वैसा मैं करूंगा, मेरे रसूलुल्लाह जी ने जैसा बोल लिया, बताया मैं वैसा करूंगा। मेरे रसूलुल्लाह कभी जी। गलत हो ही नहीं सकते। हमें हो सकता है कुछ चीज नुकसान लगे, लेकिन मेरे रसूलुल्लाह ने अगर बताया है तो उसमें फायदा ही होगा। अच्छा, आप ये ये बता बोल रहे हैं इस के हदीस में ऑर्डर है मेरे ना, रसूलुल्लाह के फर्ज लिए है मैं ना। जान, एक मिनट रुको ना यार, मैं तुमको मौका दूंगा, जब तुम्हारा, तुमको बोलूंगा ना बोलने के लिए तब बोलना। मेरे भाई रसूलुल्लाह ने, मेरे रसूलुल्लाह के लिए मैं अपनी गर्दन तक कटा दूंगा। मेरे रसूलुल्लाह के बारे में अल्लाह ने कहा, लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह आपके लिए बेहतरीन नमूना है, द बेस्ट रोल मॉडल। रसूलुल्लाह जो कुछ दे ले लो, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो 2000 लोग अभी देख रहे हैं उसमें से मेरे ख्याल से जो 300-400 मोमिन होंगे, मेरा उनसे सवाल है, क्योंकि ये भाई तो जवाब दे नहीं रहे, इनको शर्मिंदगी है, इनको मालूम है। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से भी है दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मोमिनाओं, क्या आप रसूलुल्लाह की इस बात को सुन के अभी से अपने बगल के बाल, अभी मेरा कैमरा चालू होता तो मैं भी एक दो नोच के दिखाता आपको कि किस तरीके से नोचना है। आपने ब्लेड से काट लिया है ना, इसके लिए क्या ब्लेड से काट लिया है? ब्लेड से काटने के बाद वहाँ के बाल सख्त आते, फिर नोचेंगे तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है वहाँ पे तो क्या, स्किन की। तो तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बताया है कि एक बार ब्लेड से कर लोगे उसके बाद तुमने नोचना नहीं है? उन्होंने कहा सीधा नोचना है, समझे, हदीस का वो मतलब तो ये तुम मर्दों क्यों के लिए नहीं हदीस है। नोचते? नोच के क्यों वही नहीं तो कह रहा है, निकालते? फर्ज है, ये फर्ज है, सुन्नत है, क्या है।
मतलब फर्ज है सुन्नत है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तुम्हारे रसूलुल्लाह जी ने नहीं, तरीके ये से बताइए फर्ज है सुन्नत है क्या है, वमा पहले वो बताइए। ये देखो अल्लाह कहता जी है या अय्युहल्लदीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जी। अल्लाह की तो इताअत फिर करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह के रसूल जी, तुम्हें कह रहे हैं कि बालों को, बगल के बालों को नोचो। हाँ तो तो ये फर्ज तुम्हारा बोल रहे काम हैं, वो ये क्या ना बनता है कमांड दे रहे। बिना बिना ये सवाल किए कि फर्ज है सुन्नत है क्या है फलाना है ढिमकाना है, ये सवाल किए बिना तुमने कहना है, अगर रसूलुल्लाह की बात आई तो क्या कहना है, समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने सुना और हमने फॉलो किया। मोमिन का तरीका ये होना चाहिए कि जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आ जाए तो उसको क्या कहना चाहिए, समिअना, मैंने सुना, अताअना, मैंने इसकी इताअत की। तो तुम क्यों घबरा रहे हो जब रसूलुल्लाह ने तुमको नोचने के लिए कहा है बगल के बाल, तो बोलो मेरा आज के आपका मैं बेस ही रसूलुल्लाह नहीं क्लियर है, मैं आपका बेस ही नहीं रसूलुल्लाह क्लियर है, तो पहले वो अच्छा क्लियर मतलब करना तुमको पड़ेगा। रसूलुल्लाह की बात नहीं मानना है। मैंने कहा उनकी बात नहीं, मैंने ना उनकी बात मेरे को आपको समझाने का है कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं समझे? समझाना नहीं है। अच्छा ये बोल दो कम से समझाना कम ही कि है। अभी से सुनो सुनो सुनो, ये बोल दो अभी से कि भाई जितने लोग देख रहे हैं अगर उन्होंने शेव नहीं किया, एक बार भी ब्लेड नहीं लगाया है, तो वो अब से ब्लेड नहीं लगाएंगे, अब से हम क्या करेंगे, बालों को नोचेंगे। जी, हदीस सबके सामने है, सब सुन लिए। अभी आप आगे बढ़िए, आप इससे क्या क्लेम करना चलिए चाहते हैं सर्कमसिशन ओके के चलो बारे में? आगे बढ़ते हैं। गाइस एक तो क्लियर हो गया कि ये मोमिन के बस की बात नहीं कि अपने रसूल की बात को फॉलो करे, ये अपने बालों को नोचना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को मालूम क्योंकि है ये फर्ज कि अगर नहीं है। यार रुक जा यार, हर किसी को मालूम है कि बगल के बाल अगर नोच के निकालेगा तो उसका क्या हाल होगा, वो फोड़ा आ जाएगा उधर, फोड़ा फोड़ा। तो ये मोमिन हजरात फोड़ा लेना पसंद नहीं करेंगे, रसूलुल्लाह की इस बात को लोग फेंक देंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई, नाक तुम में क्या फोड़ा क्यों नहीं आता फिर लोगों के? नाक में तुम फोड़ा क्यों क्या नहीं आता जब वो सुन्नती नोचते बनोगे। तो? अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि खतना कराना जो है ये फितरत में है, जी तो तुम कह रहे हो कि रसूल ये जो सरकमसीजन है, फीमेल जी सरकमसीजन है, ये इस्लाम का जी हिस्सा नहीं है। जी, क्योंकि ये मर्दों के लिए हदीस है ये। किसने बोला है मर्दों के लिए हदीस है? बगल नोचना ये मर्दों के लिए हुक्म है, और यहाँ तक कि ना औरतों के लिए अलग से हदीस आई है। और ये जो आप कहाँ है क्लेम कर रहे हो बताओ, ना, आप मेरे को पहले बताओ सुनिए सुनिए बताओ सुनिए। बताओ अच्छा अच्छा, एक मिनट। बताओ। पार्ट के सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, प्यूबिक हेयर, जेरे नाफ के नीचे के बाल, और क्या कहते हैं, आर्म पिट यानी खतना। बगल के बाल, इसके लिए जी अलग से अल्लाह के रसूल ने बताया है कि औरतों तुमने अपने बगल के बाल को शेव करना है और नीचे के बाल को शेव करना है। हदीस पेश करो। जी जी, इससे साफ मालूम पड़ता है आप जो है ना हदीस बीच बीच में जो उठाते हैं पढ़ते हैं, आपको लाइन से हदीसों हदीस का पेश तवातुर नहीं करो, मालूम। अभी यहाँ वहां वही की मैं बात कह रहा नहीं। हूँ। सुनिए सुनिए, मेरे और आप में क्या बड़ा फर्क है बताओ? मैं नबी के ऊपर कोई झूठी बात नहीं गढ़ूंगा, और आप बिंदास गढ़ेंगे आपको एक्सपोज अभी करने का गढ़ इसके लिए। लिए हो तुमने, अच्छा, अल्लाह गढ़ के लिया मैंने। रसूल पे तुमने, और अल्लाह के रसूल की साफ साफ हदीस है कि जिसने जानते बूझते मेरे ऊपर कोई बात गढ़ी उसका ठिकाना हाँ हाँ, जहन्नम। तो मेरे को तुमने खौफ है, एक मैं नहीं बात गढ़ी गढ़ूंगा। कि ये जो मैं नहीं बात गढ़ूंगा। है, सुनो, तुमने ये बात कही, तुमने एक बात गढ़ी कि ये हदीस सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए जी अल्लाह के रसूल ने अलग से हुक्म दिया है कि बगल के बाल को नोचना नहीं है बल्कि शेव करना है, और उसके जी जेरे नाफ के बाल जो है उसको भी शेव करना है। ये हदीस पेश करो पहले, नहीं तो तुम जी, झूठे। देखिए, बड़े बड़े मुहद्दिस को भी टाइम पे कभी कभी हो जाए नंबर याद नहीं रहते, क्या उन्हें हदीस नहीं पढ़ी है? ये बात मुझे बताओ बस। मतलब तुम्हारे पास ये अभी बात बताओ। दलील नहीं है? जी, मैं भूल गया वो कौन सा नंबर था उसका, मेरे को सब नंबर याद रखना जरूरी भी नहीं है। 5 मिनट देता हूं, जाके सर्च करके आओ, मेरे पास दूसरे मोमिन हजरात है, मैं उनसे बात कर लेता हूं। भाई भाई, उससे पहले मेरा थोड़ा जवाब दे दो। खतना फर्ज है सुन्नत है क्या है आपके नहीं हिसाब नहीं, से? खतना फर्ज सुन्नत नहीं, ये बात हुई थी कि आपके रसूलुल्लाह इसमें इन्वॉल्व है क्या नहीं है। मैंने एक हदीस पेश नहीं की, है, आपका वो कहना है कि सिर्फ सब कमजोर हदीस है कमजोर हदीस वो। की बात नहीं है, यहाँ तुमको मैंने सही बुखारी की हदीस बताया हूं, तुमने पेश करना है
تم نے کہا کہ یہ صرف مردوں کے لیے, اس کی تم کو دلیل لانا ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس پہ تم نے کہا کہ اللہ کے رسول نے الگ سے بتایا ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے بغل کے بال شیو کرے گی, اور ان کے جو نیچے کے بال ہے اس کو بھی صاف کرنے کا ذکر آپ نے بتانا ہے. یہ چیز آپ کو 5-10 منٹ کا ٹائم ہے, لے کے آئیے گا. اور اگر آپ نہیں لے کے آتے, ٹائم نہیں ہے. ہاں جی میرے کو لیٹ ہو رہا ہے, تھوڑا نیٹ بھی کم ہے.